हेलो, वेलकम बैक टू द ट्रेटर्स, जहाँ हर कंटेंट में मिलेगा आपको धोखा। धोखा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। ऐसा कोई ट्रेटर ट्रेलर मतलब ट्रेलर्स था, वी सॉ इट ऑन Amazon प्राइम कुछ, जहाँ हर बहुत ही कंटेंट बकवास किसी पे शो। शक मत करो, किसी पे धोखा मत करो, किसी पता पे नहीं क्या है, तो ट्रस्ट मत शक्तिमान करो, अंधेरा कायम किसी रहे पे यार। चीची पैपे वाले शोज हैं। ओके ओके But ओके having said that, ओके 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 हमारा टॉपिक Amazon स्टार्ट होने Prime, से I'm पहले coming, invite me over, I'll come, ओके I'll win, make me the trader, I'll win the show. हमारा Make me टॉपिक never say स्टार्ट I'll होने win. से पहले हम बता दे कि This episode has been sponsored by Burger or Chai with outlets in Sion, Mumbai and Nagpur. Go check out, have our premium burgers, healthy-ish, fresh. I don't lie. I don't cook. I don't clean. एंड लेट्स टॉक Yep. So today's topic is अबाउट Yeah. H1B वीजा। नहीं H1B वीजा नहीं, सभी टाइप के वीजा। ओके, सब टाइप के वीजा। कुछ कंट्रीज के with a touch of humor. So if you want to listen, you can listen and understand. क्या हो सकता है? So पहली बात, let's talk about a bit about the UK. UK has, of course, student visa. Then you can go and work and all that stuff. Canada also has that, and of course, US also has that, right? But increasingly, एक चीज़ मैं very very clearly बोल दूँ कि the cost of education has gone very very high, which a lot of us can meet. I've also done it. I had scholarships to NYU and stuff, but also I could meet the costs. I'd worked, saved up, got loans and all that stuff. So हो सकता है. But the return on investment consider करके जाओ. Like my experience has been कि especially talking about the US, right? यार H1B is slavery. जिसको जो बोलना है बोले, जिसको जो करना है करे. H1B is slavery, nothing else. The US has a long history of slavery. कुछ ना कुछ फॉर्म में वो slavery करते हैं. It's a very controversial statement, but that's true. पहले ऐसा होता था कि ठीक है, इंडियंस जाते थे 90s 60s 70s 80s 90s में H1B लेते थे, ग्रीन कार्ड करते थे, 2-4 साल में आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता था, फिर आपको सिटीजनशिप मिल जाती थी. अभी ऐसी हालत है कि 130 साल का वेट है ग्रीन कार्ड के लिए. तो मेरे भी बच्चे हो जाएंगे, उसके भी बच्चे हो जाएंगे, उसके भी बच्चे हो जाएंगे, शायद उसके भी बच्चे हो जाएंगे, फिर भी ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा. वो कौन सा बंदा है, ब्रायन समथिंग, ही स्पेंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन हिमसेल्फ टू मेक हिमसेल्फ लुक यंगर. वो भी कर लूँ तो भी 130 साल जिंदा थोड़ी रहूँगा. सो इट्स लाइक, बी केयरफुल अबाउट व्हाई यू आर गोइंग. कैंडिडली the experience in the US was very good. I learned a lot. If learning is your thing, right, like definitely, look, I was always confident. ये कुछ नहीं आता, इसने तो इंग्लिश के पैसे बर्बाद कर दिए मेरे. I was always confident, leader in various capacities in my school, colleges, workplaces, led teams, spoke in front of thousands of people. So I've always been good at that. But going to US, studying there, interacting with people from all over the world, cultures, it gives you a different sense of confidence and builds character. So if you want to go and learn those kind of things, work there for a few years, it gives you a different perspective how, even if you're working in a startup or a mature company, how you're building those from a financial perspective, organizational perspective, marketing perspective, सब कुछ सिखाएगा. But ultimately आप H1B में stuck हो. So ऐसा होता था कि look, मैं मुंहफट हूँ within reason. ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती जाके कहीं पे उंगली करूँगा या पुंगली करूँगा. बट कई बार ऐसा होता था कि योर मैनेजर इज़ रॉन्ग. यू कांट इवन आउट ऑफ फियर कि मैंने ज़्यादा कुछ बोल दिया और इसने कंपनी से निकाल दिया या इसने फायर कर दिया या डिमोट कर दिया, H1B पे सवाल आ गए, अब नहीं कर सकते थे. सो इट्स लाइक यू आर बेसिकली फुद्दू की तरह आप बैठे रहते थे, जो भी बोला जा रहा है करो, वो करो, ऐसा करो. आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि H1B में क्या होता है, अगर आपकी जॉब गई तो 2 महीने के अंदर आपको विदिन 60 days यू हैव टू लीव द कंट्री until and unless you find your next job. It's very very dependent on your company. तो आप समझ ही सकते हो, जब कंपनी से टाइड अप हो तो आप क्या ही कर लोगे, कितना ही इंडिपेंडेंस दिखा लोगे. दैट्स माई 2 cents. अब बोलो. ओके, सो H1B तो बोल दिया. उसके बाद मैं डिपेंडेंट की बताती हूँ. लाइक जब आपके हस्बैंड वहाँ पे काम कर रहे होंगे H1B पे, तो ऐसा एक चूतिया रूल है कि तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं कर सकता काम के अलावा, बट तुम्हारी बीवी पे पूरा फ्रीडम है. पूरा फ्रीडम है. अर्न नहीं कर सकते, बट पूरा फ्रीडम है. आप पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, बट विदाउट अर्निंग. फ्रीडम है. हाँ नहीं, फिर टू क्लैरिफाई क्या होता है कि लाइक इफ यू आर ऑन H1B यू कैन अप्लाई फॉर द ग्रीन कार्ड फेज विच इज योर EB1 EB2 ब्ला ब्ला ब्ला. सो अभी तो the situation there is so bad that EB1 EB2 all of these are taking much more time if you're going through your organization. So I applied to EB2 National Interest Waiver, something known as National Interest Waiver. उसमें क्या होता है, you have to prove
why you are beneficial to the US economy, how your sort of proposed endeavor या क्या क्या काम कर रहे हो उसके वजह से basically US को क्या फ़ायदा होगा. So वो वीज़ा के लिए अप्लाई करा, वो अप्रूव हो गया. That's the first stage of green. That's the first stage of green card. ये तो डिफरेंट चीज़ हो गया, बट तुम्हारी कंपनी के साथ जब टाई अप रहता है H1B, देन कंपनी तुम्हारे लिए अप्लाई करती है, देन ये गारंटी तो बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेज कब तक कंप्लीट होगा. तो तुम्हारे डिपेंडेंट को तब तक आजकल तो हाथ पे हाथ रख के उधर बैठे ही रहना पड़ता है. मतलब I know a lot of my friends जो 3-4 साल से है, शादी करके गए हैं इंडिया से, एंड उनकी वाइफ वगैरह मतलब कैसे on the other side mostly it's the wives, क्योंकि guys क्योंकि ऐसा अब वो ये मेल वर्सेस फीमेल और फेमिनिस्ट और ये सब डिस्कशन हो जाएगा, तो अभी वहाँ जाना नहीं है, वो किसी और टॉपिक पे बात करेंगे. मैं एक खुद फीमेल होके मैं बताती हूँ, मैंने पूरा 1 साल बर्बाद ही करा है मेरा. बर्बाद नहीं, शी वाज जस्ट ग्रेजुएटेड, तो ऐसे ही मतलब एक्सप्लोर कर रही थी, चीजें देख रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी, नया कंट्री था, नया सिटी था, तो सारी चीजें मजा आया. बट ये अगर 1 साल से 2 साल हो जाता तो डेफिनेटली मैं पागल हो जाती वहाँ पे, अगर मेरे पास काम का वीजा नहीं आता. तो ये बहुत ही रेयर केस है कि तुम्हारा हो जाता है, बहुत ही रेयर, स्पेशली मेरे दोस्तों में तो किसी के पास नहीं है जहाँ तक मुझे पता है. Things might have changed but it's incredibly hard to get that first stage. उसके बाद वो स्टेज मिला तो फिर something known as H4 EAD के लिए अप्लाई कर सकते हैं. EAD अप्लाई करने के बाद भी 6 महीने लग जाते हैं आने को, फिर आया, फिर इन्होंने थोड़ा टाइम EAD के बाद then you can एकदम खुला हुआ वो पंछी जो होता है ना, जैसे फ्री बर्ड. no it's not clarify. उसमें भी ऐसा रहता है कि ऐसा नहीं कि आपको कोई भी जॉब दे देगा, क्योंकि आजकल वैसा वीजा सिचुएशन चल रहा है, कोई भी ऐसे टेम्पररी वीजास देख के कंपनीज पहले ही भगा देती है, बिकॉज द सिचुएशन इज वेरी 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 बैड. हाँ, शी इज फ्री. ये तो सबसे आयरॉनिकल है, इट्स वेरी आयरॉनिकल कि आप H1B में, मैं तो F1 स्टूडेंट वीजा में गया था, फिर H1B अप्लाई करा, OPT, फिर H1B अप्लाई करा, लॉटरी में सिलेक्ट हुआ. ये सब बहुत बड़े बड़े डिस्कशंस हैं, लॉटरी भी लगनी होती है. एनीवेज लॉटरी में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर ये आई शादी करके, इसको H4 वीज़ा लिया, ये मेरे साथ US आई. फिर इसके H4 EAD में द सरप्राइजिंग थिंग इज ये कहीं पे भी काम कर सकती है. मतलब इफ़ शी वांट्स शी कैन वर्क एज अ मेड ऑल्सो. आई एम जस्ट सेइंग, याद है हमारा एक मेड वाला वीडियो था, आई एम जस्ट सेइंग, सनी बोल रहा हूँ जाके मेड वाला काम कर, बट यू कैन. सो ये तो बहुत ही मतलब एक रिडिकुलस सा चीज़ है कि द मेन पर्सन हु केम टू द कंट्री इनिशियली कैन जस्ट बी टाइड टू देयर जॉब, बट उनके डिपेंडेंट कुछ भी काम कर सकते हैं. So I get it why a lot of people in the US are also trying to get rid of this visa and things like that. और अभी रिसेंटली तो आपने देखा ही है, बर्थ राइट सिटीजनशिप भी हटाई जा रही है. अब क्या ही बोले, मतलब उधर लोग पहले पैदा हो जाते थे, जस्ट टू क्लैरिफाई, तो उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, अब वो भी हटा दे रहे हैं. तो जब हमारा ये वीडियो लगे, आई डोंट नो कोई दूसरा लीगल आ जाए या ये हट जाए, सो आई डोंट नो, बट बी केयरफुल. आजकल ऐसा हो गया कि यार देखो, इंडिया भी, मैं भी इंडिया से ही पढ़ के गया था, इसने भी इंडिया से ही पढ़ के गई थी, तो हमें पता है इंडिया में भी चीज़ें सेफ़ तो है नहीं, और करियर सेफ़ नहीं है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत हसल करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है. बट द थिंग इज़ कि बी ओपन, वो सपने भूल जाओ जो लोगों ने दिखाए हैं पहले, जो 90s 2000s में होते थे कि लोग जाते थे और बढ़िया ये करते थे, वो करते थे. वो सिचुएशन अब नहीं रहा है. सो बी केयरफुल. आई वुड स्टिल रिकमेंड कि अगर आप जा रहे हो, पढ़ो, एक्सपीरियंस गेन करो, एजुकेशन गेन करो, एंड इंडिया आना चाहते हो तो वापस आ जाओ. और अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज आर स्लाइटली बेटर इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन, तो वो सब ट्राई कर लो. बट US तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है. वो जो US ड्रीम कहा जाता था, it's not that straightforward or easy. In fact, it's become very 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 tough. There's massive amounts of racism, targeting, और ये सब चूतियापा तो हो ही रहा है, क्योंकि मोस्टली हम इंडियंस तो टेक में ही जाते हैं, और वो टेक फील्ड तो ऐसा हो गया, एक तो AI आपकी जॉब्स रिप्लेस कर रही है. मैं कई अपने दोस्तों को जानता हूँ 3-3 साल से आज सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक ऑफ कि ये हो जाएगा. तो आई थिंक हैविंग सेड दैट, इंडिया में भी करियर टफ है, बट इफ़ यू चूज़ अ पाथ, आप आराम से 5-6 साल काम करके 40-50 lakhs तक तो आ ही सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड अमाउंट इन अ लॉट ऑफ मेट्रो सिटीज़. सो अगेन, ये करियर गाइडेंस का चैनल नहीं है, अपना देखते बैठो भाई. बट इतना ही बताऊंगा कि US में जो लोगों को हवा लगता है ना कि H1B में पहुंच गए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इट्स स्लेवरी. वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन. वो इंडिया में बैठे बैठे उनके फैमिली को लगता है कि मेरा बेटा तो मतलब ताजमहल में बैठा हुआ है वहाँ पे US में, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता है. स्लेवरी बन के घूमता है वहाँ पे. बस यू आर टाइट. बेसिकली द स्लेवरी एस्पेक्ट इज यू आर टाइट टू योर कंपनी. बट अगेन थोड़ी बहुत चीज़ें यार अच्छी भी है, ठीक है, एक तरीके का फ्रीडम है, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है. बट इफ़ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट जैसे कि हम थे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. हाँ,
जो पहले गए हैं उनके बच्चे अब वहाँ पैदा हो गए, वो ऐश करते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अमेरिकन सिटीजन है राइट, तो उनको स्कूलिंग वहीं की मिलती है, वो वहीं की सिटीजनशिप, वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनका मन करे 2 साल बुक में जाए कुछ भी करे बैठ के, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम कर सकते हैं, यू नो वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल बेनिफिट्स ले सकते हैं। हम तो कुछ नहीं ले सकते। हाँ, इतने सालों से मैंने सोशल सिक्योरिटी फलाना ढिमकाना लौड़ाना लसाना सब भरा, मिला तो कुछ भी नहीं अल्टीमेटली, वो सब तो सरकार के खाते में गई। तो आई नो यहाँ पे भी लोग डिस्कशन करते रहते हैं टैक्स का, इसका उसका, बट यार वो मतलब क्या ही बोलूँ, आई एम 2 सिक्के होते हैं, सॉरी 2 साइड होते हैं एक सिक्के के, कुछ भी हो सकता है। विल टॉक अबाउट दैट लेटर, इंडिया एंड टैक्स सिस्टम एंड इंडिया के बकवास सिचुएशंस। बट हाँ, यूएस के H1B में तो भाई देख के जाओ, वो सिचुएशन वैसा नहीं रहा, यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। ये वीडियो हमारा आपको डराने का नहीं था। अगर आपको वीडियो नहीं डर भी गए तो अच्छी बात है, डरो डरो, देखो पढ़ो, रिसर्च करके जाओ, हवा में मत पढ़ो, कंसल्टेंसीज आपको लुभाएंगी बहलाएंगी। 3 साल का वीजा, OPT और OPT एक्सटेंशन भी स्क्रैप होने वाला है। जो रियली समझ जाने की कोशिश कर रहा है खुद से रिसर्च कर लो, क्योंकि ये ज्ञान चोदने वाला वीडियो नहीं है। आज थोड़ा हमने सीरियस वाला टॉपिक करा, बट दिस इज़ नॉट अ ज्ञान चोदू वीडियो। खुद का जाके एक्सप्लोर करो। OPT एक्सटेंशन भी शायद बंद होने वाला है, बहुत लोगों ने ये करा है। तो लिटरली अगर आप पढ़ो, इतने लाखों करोड़ों, सॉरी लाखों मतलब लिटरली कोई भी 40-50 हज़ार डॉलर लगते हैं साल के, प्लस रहना खाना पीना, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर स्टेइंग, यू कैन एंड अप पेइंग 1.5 करोड़ एज वेल इंडियन रुपीज़ 2 साल में। तो बेटा देख के जाओ कि क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। ऐसे मुँह उठा के चले गए कि बहुत कमा लेंगे। दूसरा कंट्रोवर्शियल एकदम स्ट्रेट चीज़, बेटा यूएस की सैलरीज इतनी भी ज़्यादा नहीं है, कुछ फील्ड्स में है, कुछ कंपनीज में है, वरना यूएस की एवरेज सैलरी 55,000 57,000 ही है मीडियन सैलरी। आप न्यूयॉर्क सिटी, बे एरिया, LA कुछ ऐसे बड़े सिटीज़ में रहोगे तो मे बी आपको ज़्यादा मिलेगा, अदरवाइज बेटा बहुत कम ही मिलता है, 60 70 75 80 ही मिलता है। उसमें आप सोच लो कितना कमाओगे, 60 70 75 ही कमाने हैं तो 50 लाख ही हुए। बेटा 5 साल यहाँ रह जाओगे, किसी गूगल ऊबर अमेजोन में हैदराबाद बैंगलोर में काम कर लोगे, डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर, डिस्टिंग्विश्ड क्या है, सीनियर इंजीनियर भी बन जाओगे, बढ़िया कमा लोगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। मे बी आपका दिमाग भर भी जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो जाओ, गो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। वो सब कुछ मत करो, मजे करो।